Hello, good morning. This is Sisraj. Today we will learn one full chapter, and this is a poem. The poem name is The Balloon Man. Okay, I had uploaded one video of the recitation of this poem, but again I am uploading the full chapter in one video. So at first we will know the summary and new words of the poem The Balloon Man. The Balloon Man. In the summary of the poem, The Balloon Man, we shall explore the poem composed by Rose Fileman in detail. In this poem, there is a young girl who meets a balloon man whom she often meets in the market square. The balloon man is found carrying balloons of various colors like red, purple, blue, and green, and these balloons look very vibrant from a distance when the market is crowded with carts and people. ये छोटी सी लड़की है, वो बता रही है कि उसको बैलून मैन है वो हमेशा मिलता है मार्केट स्क्वायर पे और उसके पास में अलग अलग कलर के बलून्स हैं. The balloons are of different shapes and sizes which are secured with a thin string of thread and look beautiful when the wind blows. वो कहती है जब हवा चलती है तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो गुब्बारे. Having said that, the girl strongly wishes that someday perhaps the balloon man would let loose the balloons in the air and they would sail high in the sky and look pretty floating in the air. वो लड़की विश कर रही है, ये सोच रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो बैलून मैन जो है बलून्स को छोड़ देगा, उस रस्सी को ढीली छोड़ देगा ताकि वो बैलून्स आसमान में उड़ेंगे, बहुत ही सुंदर दिखेंगे. न्यू वर्ड्स देखिए इसमें. बंच, a number of things of the same kind kept together. गुच्छा, I gave a bunch of white flowers to my teacher. Square, a four-sided area surrounded by building. Sunny, bright sunlight. Tug, pull hard. So these four new words are here. Let's come now. We will read this poem. We will recite this poem. Does a balloon man visit your market? क्या आता है कभी आपके बाजार में balloon man? Let's see what this balloon man brings with us. क्या लाता है वो आप with him, अपने साथ में क्या लेके आया है balloon man? आइए देखते हैं. The balloon man. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. If you will recite this poem, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. सो बलून मैन आता है. पहली लाइन देखिए मैं, ही ऑलवेज कम्स, वो हमेशा आता है मार्केट डेज, बाज़ार के दिनों में जब बाज़ार खुला रहता है. एंड होल्ड्स, और पकड़े रखता है बैलून से लवली बंच, बहुत ही अच्छा सा गुच्छा. एंड इन द मार्केट स्क्वायर, खड़ा कहाँ होता है वो मार्केट के सेंटर में खड़ा होता है. और कभी लंच भी करता होगा, इसके बारे में सोचता होगा, ऐसा हमें नहीं लगता. उसके पास में बैलून रेड है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है. और जब धूप का मौसम होता है तो गाड़ी और लोग, उनकी इतनी भीड़ हो जाती है, क्राउडेड हो जाता है कि दूर से वो हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं बैलून्स. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बैलून्स बड़े हैं उसके पास में, कुछ छोटे हैं. ऑल टाइड टुगेदर विद द स्ट्रिंग, सब धागे से बंधे हुए हैं उसके पास में. एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, जब हवा आती है, द टग एंड टग लाइक एनीथिंग. पुल हार्ड, मतलब जब हवा चलती है तो वो एक दूसरे के से टकराते हैं और उड़ते हैं. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, ऐसी विश कर रही है लड़की छोटी सी कि एक दिन ऐसा आए कि वो बैलून मैन जो है उन गुब्बारों को छोड़ देगा और वो आसमान में ऊंचाई पे उड़ेंगे और वहाँ से उड़ते हुए हम उनको नीचे से देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, प्रीटी लगेंगे. ऐसा वो लड़की विश कर रही है. ये न्यू वर्ड्स इसमें है. बंच है, स्क्वायर है, सनी है, टग है. आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर. वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड, कहाँ खड़ा होता है? बैलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट में खड़ा होता है वो, है ना. What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा आती है तो बैलून के साथ में क्या होता है? The balloons fly here and there.
व्हेन देयर इज़ अ विंड, जब हवा आती है तो वो इधर उधर उड़ते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू, बच्चा उस बैलून मैन को क्या करते हुए देखना चाहती है। द चाइल्ड वॉन्ट्स द बैलून मैन टू लेट लूज द बैलून्स इन द एयर, शी वॉन्ट्स टू सी देम फ्लाइंग हाई इन द स्काई, वो बच्ची सोच रही है कि बैलून मैन उस गुब्बारे की स्ट्रिंग को लूज छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, ताकि वो आसमान में उड़ेंगे और वहाँ से उड़ते हुए खूबसूरत दिखाई देंगे। हाउ हाई कैन बैलून्स कैन फ्लाई, गुब्बारे कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएंगे। बैलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, उनकी साइज़ पे डिपेंड है, अगर छोटा है कि बड़ा है ना, उस हिसाब से बड़ा है तो ऊपर तक जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, इस पोएम में आपको क्या पसंद आया। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बैलून्स, अलग अलग प्रकार के गुब्बारों के बारे में बताती है। अब इसमें कुछ जम्बल वर्ड्स हैं, देख लीजिए। LLABOONS बैलून्स, CUNLH लंच, ULB ब्लू, PLOEEP पीपल, बिलो, ये हम आपको बता चुके हैं। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। नेचर, तो स्काई, विंड, ग्रास, ये हम नेचर में काउंट करेंगे। फूड में क्या काउंट करेंगे, खाने में टर्निप है, पाइनएप्पल है, राइस है। कलर्स में पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, ये हम कलर के ग्रुप में इसको शामिल करेंगे। आइए अब देख लेते हैं छोटी सी मेज़। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज़ और राइट द नेम्स बिलो। ये छोटी सी एक टेबल है, मेज़ है, इसमें कलर्स के नाम दिए हुए हैं, तो हमें उन कलर्स के नाम को सर्च करना है, उसकी स्पेलिंग को, उनको सर्कल करना है। आइए देख लेते हैं। देख लीजिए, इसमें रेड है, वाइट है, वायलेट कलर है, इसमें ब्लैक है, ब्राउन कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, पर्पल कलर है इसमें। और ये जो ग्रीन की स्पेलिंग जो दे रखी है ना, इसमें यू आ रखा है बीच में, लेकिन फिर भी सर्कल कर रखा है, मतलब ये यू की जगह ई लिखना चाह रहे थे। येलो यहाँ पे स्पेलिंग है, ब्लू यहाँ पे स्पेलिंग है, पिंक नीचे स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है। अब एक दो स्पेलिंग जैसे पर्पल है, इस पर सर्कल नहीं किया हुआ ना, बिल्कुल ऑरेंज और ग्रीन के बीच में देखिए पर्पल कलरली इसमें लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर ऑपोजिट्स, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम। ऑपोजिट लिखना हमें, नेवर का मतलब कभी नहीं, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑलवेज यानी हमेशा। स्मॉल का मतलब छोटा, बिग का मतलब बड़ा। रेनी यानी बारिश के दिन होते हैं ना, रेनी। सनी यानी धूप का मौसम। लो का मतलब नीचे, हाई का मतलब ऊपर। सिट का मतलब बैठना, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, नियर का मतलब पास में, फार का मतलब दूर, FAR, फार का मतलब दूर, डिस्टेंस हो, नियर का मतलब नज़दीक, पास में। सो ये देख लीजिए आप, ये मैंने पर्पल उसमें था नहीं तो इसलिए कर दिया आपके लिए। 1 नंबर पे ऑरेंज है, 2 नंबर पर्पल है, 3 नंबर पे फिर येलो है, 4 पे ब्लू है, 5 पे नीचे पिंक था, फिर ब्लैक, वायलेट, वाइट, रेड, है ना। इस प्रकार से इसमें 9-10 जो कलर हैं आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। ब्राउन कलर भी एक बिल्कुल ऑरेंज के नीचे वाली लाइन में देखिए आप, ब्लैक जहाँ से शुरू किया वहीं से ब्राउन देखिए, लेफ़्ट से राइट में ब्राउन है, BROWN। चलिए, उसके बाद में वर्कशीट है छोटी सी, देख लीजिए, इसमें भी यही दिया हुआ है, एंड नेम, लेसन है, रोल नंबर है, यही है। इसमें सर्कल द नेम ऑफ 10 कलर्स आपको यहाँ पे सर्च करने हैं, उनको सर्कल करना है। एक आपके लिए किया हुआ है ब्लू कलर, बाकी आपको करना है, ठीक है। ये दूसरी मेज़ है, वो नहीं है, ये दूसरी है, ठीक है, ये दूसरी है। इसमें देखो पहली लाइन में ब्लैक कलर दिया हुआ, तो ये दूसरी है, जो बुक में है ना वो नहीं है, ये अलग है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए। तो 10 कलर्स इसमें फाउंड करने हैं। फिर चेंज ईच वर्ड इनटू कलर नेम गिवन इन दिस बलून्स, ऐड और चेंज ए लेटर। एक लेटर हमें चेंज करना है, फिर कलर्स का नाम बनाना। जैसे पहला ना इंक दिया हुआ, तो हमें पिंक इसमें कलर बना सकते हैं, PIN के नीचे लिख सकते हैं। दूसरे में SHIT, ये तो वाइट लिख सकते हैं, WHIT। तीसरे में C की जगह B लिख सकते हैं, ब्राउन। चौथे में ब्लैक, B जोड़ सकते हैं। पांचवे में ROON दे रखा है, और छठे में CLUE, तो ब्लू कर सकते हैं उसको। चलिए, नेम द कलर्स ऑफ, इन कलर्स का नाम बताना, आपके बालों का कलर क्या है, योर यूनिफॉर्म, आपकी ड्रेस का कलर।
पैरट का कलर क्या है, मिल्क का कलर क्या है, वाइट है, गाजर है उसका कलर क्या है, स्काई का कलर क्या है। फिर नीचे मैच द अपोजिट वर्ड्स है, मिलाना इनको, विलोम शब्द है। अप को डाउन से करेंगे, नैरो को, नैरो का मतलब संकीर्ण होता है, इसको किससे करेंगे देख लीजिए, वाइड से। और उसके बाद में हैप्पी है, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है तो इसको फुल से कर देंगे, डे को नाइट से कर देंगे, फर्स्ट को लास्ट से, ठीक है। और लेस है, इसमें पुश है, लेस का मतलब कम है, और कम, और का मतलब और ज़्यादा, पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना, नियर का मतलब पास में, फार का मतलब दूर। नीचे दिया हुआ ड्रॉ बलून्स एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। एक इस बॉक्स में एक बलून की पिक्चर बनानी है, गुब्बारे की, ज़्यादा भी बना सकते हैं एक से, और बलून के बारे में लिखना है ना, कि अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, किस किस काम में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, स्ट्रिंग है, स्ट्रीम है, स्ट्रोंग है, स्टेंड है, स्टिंग है, स्टिल है, हाउल है, टेल है, सेल, होल है, माइट, टेल, सेल, माइट, इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हैं। Okay, hello friends, how are you? So today we will learn one poem related to the balloons. What is this? These are some balloons, and today we will read one poem, and the poem name is The Balloon Man. Okay, so let's come. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. Okay, sing like that. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cards and people get between. You see them shining far away. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cards and people get between. You see them sailing far away. And some are big and some are small. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go. Someday perhaps he will let them go. Someday perhaps he will let them go. And he shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Thank you. और इस प्रकार से ये पोएम आपके सामने हमने प्रेजेंट किया, वर्कशीट प्रेजेंट किया, क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया, न्यू वर्ड्स, समरी. सो दिस इज़ द पोएम द बलून मैन, फुल चैप्टर इन अ सिंगल वीडियो. कैसे लगी आपको बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.